الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأزواجه أمهاتهم صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الصداب ظلوي السبتسر هزار بار بشو امدهن مشغولا بنوزنا من دفتن کمال بے ادبی. آج مارچ سن 2024 11 رمضان مبارک 1445 ہجری جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کا حصہ ارشاد باری قال وازواجہ امہاتہم اور ان کی ازواج ان کی مائیں ہیں. اس سے مراد علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مومنین کی مائیں قرار دیا ہے. اس اعتبار سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج اور 11 کی 11 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کی مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں. اور ان میں سے ایک جن کا تذکرہ ہم سنیں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی خاصیتوں سے خاص ہیں. اور وہ کون ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ وہ ہیں کہ جو پہلی ام المؤمنین ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی ہے. یہ وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف جب تک یہ زندہ رہی یہی نکاح میں رہی, ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی سے نہیں نکاح کیا. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کبھی غصہ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولاد انہی سے عطا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے اور ظہور نبوت کی خبر بھی سب سے پہلے انہیں ملی. سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں اور یہ وہ ہیں جن کے متعلق سبحان اللہ کیا مقام اللہ نے عطا کیا کہ ساری کائنات کا سکون مصطفیٰ ہیں. اور مصطفیٰ کا سکون یہ ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, جن کے متعلق امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ انیس غم مونس بے کساں وہ سکون دل مالک انس و جان وہ شریک حیات شہ لامکاں سیما پہلی ماں کہف امن و امان حق گزار رکھا السلام. یہ مومنین کی پہلی ماں ہے کہ دنیا اوروں کے پاس سکون پاتی ہے اور حتیٰ کہ مصطفیٰ سب کا سکون ہے لیکن یہ مصطفیٰ کا سکون ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر اس لیے بھی ہم کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ماں ہیں اور اس لیے بھی کہ ان کا ذکر سنت مصطفیٰ ہے اور ان کے ذکر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. یہ سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا لقب ہے طاہرہ سیدۃ قریش صدیقہ, جنہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کی صدیقہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کی نسبت سے ام قاسم کہلاتی ہیں. مجسمہ حسن و اخلاق رہی, پاکیزہ سیرت و بلند کردار رہی, صفا کی پیکر وفا کی پھوگر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن کر رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسبت سے ساری امت کے سید زادوں کی نانی بھی کہلاتی ہیں. ان کے یہ فضائل ہیں, یہ برکات ہیں. اور اسلام کے احکام بھی آئے نہیں تھے, یہ اس سے پہلے بھی پردے کی پابند تھی. اسلام کے احکام بھی آئے نہیں تھے, سچی تھی, پاک تھی, بڑی نفیس طبیعت کی مالکہ تھی اور بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی. حتیٰ کہ جب باپ کا انتقال ہوا باپ کی تجارت خود سنبھالی اور کیسی تاجرہ تھی. آج دیکھیے عورت چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکل کر نامحرموں سے بات کرتی بے پردہ ہوتی دکھائی دیتی ہے. ان کی سیرت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر یقین جانیں جنت کا گہوارہ بن جائے. ایسی تاجرہ ہیں
खुद कभी किसी गैर महरम से बात नहीं की, किसी से मिली नहीं, और तिजारत ऐसी करती थी जिस साल मक्के के अंदर सारे ताजरों को नुकसान हुआ था, और ये वो ताजरा थी जिन्हें उस साल भी 1-2 गुना नहीं, 3-4 गुना नहीं, 11 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ था। ऐसी तिजारत करती थी, ऐसी ताजरा थी। और जब डीलिंग करवानी होती थी तो इनकी कनीज की नफीसा उसके जरिए भेजती थी, उसके जरिए बात करवाती थी। किताबों में आता है कि सालाना औरतों का मेला लगता था, वहां उस मेले के अंदर औरतें शरीक होती थी, किसी मर्द को इजाजत नहीं होती थी। लेकिन एक मरतबा जब ये मेला लगा तो औरत का एक आलिम वहां पहुंचा और उसने औरतों से मुखातब होकर कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, उस नबी का ज़ुहूर करीब आ गया है जिसका कलिमा पढ़ने वाले अब इस दुनिया में मौजूद हैं, और वो नबी आने वाला है। वो औरतें उस आलिम को, उस औरत के आलिम को बुरा भला कहने लगी और उसे वहां से भगा दिया। लेकिन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ये सुना तो मैंने उसी वक्त से दिल में आस लगा ली कि अगर अल्लाह का वो नबी आने वाला है तो फिर काश के मुझे उसकी रफ़ाकत नसीब हो जाए। कहती हैं मैं मुंतज़िर होना शुरू हो गई और मैं उस वक्त के हिसाब से जैसे होता था अल्लाह से लौ लगाती थी। कहती हैं फिर अचानक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। फरमाती हैं कि मेरे नबी की तारीफात मुझ तक पहुंचती रहती, मुझे पता चलता कि वो सादिक भी हैं, मुझे पता चलता कि वो अमीन भी हैं, मुझे पता चलता कि वो ऐसे इंसान हैं जिनके किरदार की गवाही मक्के के काफिर भी दे रहे हैं, सरदार भी दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं, खानदान के अफराद भी दे रहे हैं, सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। कहने लगी कि फिर मैंने उन्हें आजमाना चाहा, इस तरह आजमाया कि अपनी कनीज नफीसा को भेजा, और वो कनीज नफीसा गई और जाकर पैगाम ये दिया कि मक्के की ताजरा हैं और वो खदीजा हैं, वो अपना माल तिजारत के लिए भेजना चाहती हैं। और उस साल अहद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा, उनकी किफायत में थे, कहा कि अबू तालिब ने कि जाइए और कोई तिजारत और कोई काम काज तलाश कीजिए ताकि रिस्क आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब अज़्ज़ व जल चाहेगा तो मेरा रिस्क मेरे पास खुद चल कर आ जाएगा। ये कहा और फिर ये नफीसा पहुंच गई, ऑफर की कि खदीजा का माल तिजारत लेकर दूसरे मुल्क जाना है, जाओगे? फौरन कबूल किया। और खदीजा ने फिर अपने गुलाम जिसका नाम मैसरा था उसको साथ कर दिया, साथ करके कहा मैसरा 3 बातों का ख्याल रखना। एक तो ये कि गौर से देखना कि वो करते क्या हैं, कैसे तिजारत करते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह तुम मेरे गुलाम हो उनके भी गुलाम बनकर रहना। और तीसरा ये कि उनकी राय से इख्तिलाफ ना करना, उनकी बात को तरजीह देना, जो वो फैसला करें बस वो मानना। मैसरा फरमाते हैं जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया तो ये तो हस्ती ही ऐसी थी, मुझे खदीजा कहती ना कहती, मैं तो वैसे ही उनके साथ जब चलना शुरू हुआ मेरा जिस्म क्या मेरा दिल भी उनका गुलाम हो गया था, मैं तो उनका फिदा हो गया उन पर। फरमाते हैं मैं देखता था जब वो माल तिजारत बेचते थे तो माल तिजारत बेचते हुए किसी ने कहा कि लातो उज़्ज़ा बुतों की कसम खाइए, तो मोहम्मद ने कहा कि मैं जिनका नाम लेना पसंद नहीं करता, क्या मैं उनकी कसम खाऊंगा? कहते हैं माल तिजारत ऐसा बिका, कहते हैं जितना मुनाफा पहले कभी नहीं हुआ था, मुस्तफा के सदके अल्लाह ने उतना मुनाफा करवाया। ऐसी तिजारत फरमाई। आज लोग झूठी कस्में खा खा कर माल बेचते हैं, कसम से इतने का तो आया भी नहीं है, कसम से इसमें तो ये वस्फ है झूठी कस्में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया झूठी कसम माल को बिकवा देती है लेकिन उससे बरकत उठ जाती है, इसलिए इस नुक्ते को ध्यान में रखिए। किताबों में लिखा फिर जहां जाकर आप ठहरे तो एक राहिब यहूदी आया, वो मैसरा के पास आया, उसने कहा किसको साथ लाए हो? कहने लगा मक्के का एक शख्स बाशिंदा है जिसका नाम मोहम्मद है। कहने लगा जिस दरख्त के नीचे आकर ये बैठा है इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के और कोई आकर नहीं बैठा है, ये नबी है खुदा का, ये अल्लाह का सच्चा नबी है। कहता अगर मुझे मेरी जिंदगी ने मोहलत दी तो जब ये नबूवत का ऐलान करेगा, क्यों? क्योंकि अभी नबूवत के ऐलान में 15 साल बाकी थे, लेकिन मेरे आका की नबूवत के चर्चे पहले से हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इतना मुतासिर हुआ। मैसरा कहता है कि जब हम चलते थे तो जब धूप आती थी तो देखता था कि बादल हुजूर अलैहिस्सलाम पर साया करना शुरू कर देते थे, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था और हैरान होता था। वो कहते हैं कि जब मैं आया वापस आए तो वापसी में मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर कहा कि मैं जरा आपसे पहले आपसे कुछ आगे चला जाऊं, जाकर पहले खदीजा को खबर दे दूं कि काफिला इजाजत वापस आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, जाकर मैसरा ने पहले पहुंचकर बताया, बस कुछ देर में वो काफिला इजाजत मक्के में दाखिल होगा। वो पैगाम सुनकर खदीजा अपनी कनीजों के साथ माला खाने पर तशरीफ लाई, खड़ी हो गई। ये वो मक्के की ताजरा है जिनके पास दूसरे बड़े बड़े मक्के के सरदार
पैगाम तिजारत भी भेजते थे, पैगाम निकाह भी भेजते थे, लेकिन ये क्या माजरा है कि ये खड़े होकर इंतजार कर रही हैं, पहले कभी किसी फासले का इंतजार नहीं किया था, आज देख रही हैं कि कौन फासला ला रहा है। फरमाती हैं मेरे गुलाम ने तो मुझे बताया ही बताया, जब मैं ताला खाने पर चक्कर देख रही थी तो मैंने देखा मुस्तफ़ा आ रहे थे और 2 फरिश्ते उनके ऊपर साया किए हुए थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे औसाफ मेरे दिल में घर कर गए। फरमाती हैं फिर मैंने अपनी कनीज नफीसा से कहा कि जरा जाओ तो निकाह का पैगाम लेकर जाओ। किताबों में आता है ये 2 मरतबा बेवा थी, एक शौहर का नाम हाला, एक शौहर का नाम हतीम, उनका इंतकाल हो चुका था। उसके बाद दर्जनों ने निकाह का पैगाम भेजा। हाजिरा थी, मक्के के रईस की बेटी थी और हुस्न जमाल का पैकर थी, लेकिन किसी का निकाह का पैगाम कबूल नहीं किया। और ये क्या था कि इधर निकाह का पैगाम खुद भेजा जा रहा था, खुद निकाह का पैगाम भेजा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पैगाम पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सीरत का एक अनोखा इजहार फरमाया। अगर कोई और होता तो वो नफीसा कहती है कि कोई और होता तो वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता कि मेरे लिए खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा है, और वो खुश हो जाता। लेकिन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपनी जगह इत्मीनान से बैठे रहे और बैठे बैठे कहने लगे नफीसा अपनी मालिका से कहना मैं अपने बड़ों और अपने चचा से मशवरा कर लूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो फिर मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। यहाँ वो लोग सबक हासिल करें जो लोग कहते हैं कि पसंद की शादी बस अपनी मर्जी से कर लो, बड़ों की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, बड़ों की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का ये पहलू भी हम मद्देनजर रखें। बड़ों की बरकतें शामिल होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में भी बरकत अता फरमा देता है। लड़ाई झगड़ों से बचत हो जाती है, जिंदगी गुजरना आसान हो जाती है। और अगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं तो फिर इसका नतीजा वो खुद देखते हैं जो अपनी मर्जी की मनचाही पसंद की शादियां करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नाजायज है, लेकिन बड़ों को शामिल रखें, उनको खुश रखें, इस सीरत के पहलू को अपनाएं तो देखिए कैसी बरकतें मिलती हैं। किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह हो गया और निकाह का खुतबा हजरत अबू तालिब ने पढ़ा, उनके चचा असद बिन अमर ने पढ़ा और उनके चचादार भाई वर्का बिन नौफल ने वो निकाह का खुतबा पढ़ा। और ये खुतबे होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खदीजा ने अपना सारा माल कुर्बान कर दिया। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी ठाठ बाट से गुजारी है और बड़े कर्म परेशान से गुजारी है, अमीरानी जिंदगी गुजारी है, लेकिन आपके निकाह में आने के बाद अब जैसी आपकी हालत है मैं उस हालत के साथ रहना कबूल भी करती हूँ, पसंद भी करती हूँ। सारा माल लुटाया, यहाँ तक के अपनी शादी के वक्त को यादगार बनाने के लिए सारे गुलाम सारी नौकरानियां आजाद कर दी और कहा ये मुझे दुआ देते रहेंगे और मेरी शादी में बरकत होती रहेगी। इस तरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने निकाह का जश्न गोया मनाया। किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनका कैसा ख्याल रखा, कैसा इनके साथ जिंदगी का रवैया रहा। किताबों में आता है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत की और हजरत खदीजा ने रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत की कि इनका भी ख्याल रखा, इनके रिश्तेदारों का भी ख्याल रखा, इनकी खुशी का ख्याल रखा, सब कुछ कुर्बान किया। रिवायत में आता है कि बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक मौका देखती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हाजिर हुई। तो आज देखिए आज की बहुएं, आज की बेटियां जब किसी घर में ब्याह कर जाएं तो फिर वो शौहर की माँ यानी सास को खातिर में नहीं लाती, उनका अदब नहीं करती और उनके बारे में ये बातें करती सुनाई देती हैं कि इसके साथ रहकर मेरी जिंदगी खराब हो रही है। लेकिन इन्होंने देखिए रिश्ते का कैसा इजहार करके दिखाया, अपनी सास जो रज़ाई सास है उनके साथ कैसा सलूक किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हलीमा सादिया मिलने आई और जब मिलने आई तो बड़े एहतिमाम से बिठाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद कहा जी चाहता है कि कुछ खिदमत में पेश करूं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को 4 बकरियां और 1 ऊंट तोहफे में अता फरमाया और कहने लगी कि ये मेरा सुलूक इनसे हुस्न सुलूक है कि ये मेरी भी रज़ाई सास हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस तरह के रवैये हुज़ूर अलैहि सलाम ने देखे कि ये तो मेरे साथ मेरे खातिर सब कुछ कुर्बान कर रही हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ हज़रत खदीजा ही नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवी का एहसास किया करते थे, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हज़रत खदीजा के बेटे थे एक हाला,
اور ایک का नाम हिंद और एक बेटी थी हिंदा। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना या बस में आराम कर रहे होते थे, आराम करते हुए जिब्रील को भी ये इजाजत नहीं होती थी कि वो मुस्तफा को उठाएं, और किसी बड़े सहाबी अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली, उमर, उस्मान, किसी को ये हिम्मत ताकत नहीं थी कि रसूलुल्लाह के आराम में कोई खलल ला सके और हुजूर उसके लिए उठ जाएं। लेकिन फरमाती हैं एक मरतबा सोए हुए थे, मस्जिद में हाला आए, आवाज से पुकारा कि मैं मुस्तफा से अपने बाप से मिलने आया हूँ। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आंखों में नींद भरी है और उठे हैं, और उठते हुए अपनी ज़ौजा आयशा से कहते हैं, आयशा मेरा हाला आया है, मेरा हाला आया है, मेरा हाला आया है। 3 मरतबा अपने सुबेले बेटे के लिए, क्योंकि हज़रत खदीजा के बेटे थे, इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर अपनी बीवी के रिश्ते के तक़द्दुस का इजहार फरमाया है। और ये वही हिंद हैं जो उनके दूसरे बेटे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया है। ये वो हिंद हैं कि जो इनके पत्नी को देखता और इनकी खुशी का इजहार पाता तो बड़ा खुश होते हुए देखकर कहता था कि बड़े खुश होते हो, क्या वजह है? तो वो कहते थे खुश क्यों ना हूँ, मेरा भाई अली है, मेरी बहन फातिमा है, मेरी माँ खदीजा है और मेरा बाप मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक सहेली आ गई। आपके विसाल के बाद एक सहेली आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आने वाली सहेली के साथ देर तक बातें की, अच्छे सलूक से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। यानी हज़रत आयशा फरमाती, मैंने देखा आम मामूल से हटकर उसे वक्त दिया। तो मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है कि आप खदीजा की सहेलियों के साथ भी इस तरह से हुस्न सलूक फरमाते हैं? कहते हैं कि मैंने ये सवाल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए लेट गए, तो मैंने देखा कि शायद सो रहे हैं। देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी सोच में हैं। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, किस सोच में है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ज़ौजा की सहेली आई थी, बस उसके मिलने की वजह से मुझे मेरी ज़ौजा याद आ रही है, मैं अपनी बीवी को याद कर रहा हूँ। और अल्लाह के वसल्लम ने आपको जन्नती अंगूर खिलाया। जब बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हज़रत कासिम का इंतकाल हुआ और वो बचपन में ही यानी दूध पीने की मुद्दत में इंतकाल कर गए, और इनका ईमान देखिए कैसा, इंतकाल कर गए तो इन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह काश इतनी मोहलत तो मिलती कि मैं अपने बेटे को मुद्दत रज़ाअत की पूरी मुद्दत दूध भी पिला देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खदीजा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा तुम नहीं जानती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कासिम की मुद्दत रज़ाअत को जन्नत में पूरा फरमा दिया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी उसकी आवाज़ सुनाऊं, चाहो तो अभी तुम्हें उसकी आवाज़ दिखाऊं। फरमाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने फरमाया है तो मैं आप पर भी ईमान लाई हूँ और तेरे पर भी ईमान लाई हूँ। जो आपने फरमाया है सच फरमाया है। 25 साल हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुर्बत और जिला बदनी के मुश्किल के गुजारे और शिकवा ना किया, शिकवा नहीं किया। आज औरत ब्याह कराती है और ये वो थी जिन्होंने अमीरी की जिंदगी गुजारी थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हो गई, माल सारा कुर्बान कर दिया, और 20 नौकरानियां थी इनके पास, सारे काम इनके नौकर चाकर करते थे, लेकिन इन्होंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े भी खुद धोए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर भी खुद बिछाया है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए खाना भी खुद तैयार फरमाती थी। आज की औरत कहती है कि घर की जिम्मेदारी मुझसे पूरी नहीं होती, और जब से मैं तुम्हारे पल्ले बंदी हूँ मेरे तो मुकद्दर को दाग लग गया है और मैं परेशान हो गई हूँ, शिकवे खत्म नहीं होते। देखिए इन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। इनकी सीरत से हम ये सीखें कि ज़ौजा औरत को, बीवी को इस तरह से शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशी के साथ अपने साथी, अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारकर खुश होकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, जी जान और माल ना देख, बस यार को देख और शाद हो जा, इसी दिल के हैं फसाद सारे, दिल दिलबर को दे आजाद हो जा, और अगर वो रखे आबाद को आबाद हो जा, और अगर करे बर्बाद को बर्बाद हो जा। बस तो उसने अपने शोहर की खुशी में खुश रहे। फिर देखिए जिंदगी कैसे गुजरती है। किताबों में आता है कि 3 साल का जो मुहासरा शाह अबी तालिब का हुआ, घाटी में बंद कर दिया गया, सोशल बायकॉट हो गया, लेकिन उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा से कहा कि खदीजा चाहो तो तुम अलग रह सकती हो, मेरा बायकॉट है तुम्हारा नहीं है। लेकिन कहा या रसूलुल्लाह क्या मैं आपको लगता है कि आपको छोड़ दूंगी जब आपकी खातिर सब कुछ कुर्बान किया है? तो ये मुहासरा क्या चीज है। गुर्बत के साथ 3 साल साथ रही, जब मुश्किल वक्त गुजर गया और अच्छा वक्त आ गया, बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरहाने आकर बैठ गए और कहा, ज़ौजा कहने लगी या रसूलुल्लाह 25 साल में मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। माफी मांगने लगी कि माफ कर देना या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा क्या सुनाया, फरमाया ए खदीजा माफी ना मांगो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशखबरी अता फरमाई है, तुम दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में भी मेरे साथ निकाह के साथ ब्याह ही जाओगी, तुम जन्नत में भी मेरी बीवी कहलाओगी। अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम दे दिया है। और इन्हें ये मकाम अता हुआ कि जब ये मर्ज़ अदालत में, मर्ज़ वफात में थी तो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा रसूलुल्लाह के पास और कहा जाओ
بیٹی اپنے بابا سے کہو اپنی چادر دے دیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جان کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی والدہ امی جان ایسی حالت میں ہے وہ اپنی چادر طلب فرما رہی ہیں. گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنی چادر عطا فرمائی اور بیٹی سے کہا پوچھ کر بھی آنا کہ کیوں منگوائی ہے. جا کر بیٹی نے چادر حضور علیہ السلام کی انہیں دی اور پھر جب انہوں نے پوچھا تو آ کر بتایا کہ بابا جان امی جان کہتی ہیں کہ آپ کی چادر اس لیے منگوائی ہے کہ میں اسے اپنا کفن بنوا سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی کا ارشاد فرمایا, کہا بیٹی ماں نے تو تمہاری چادر منگوائی ہے, محمد کا چمڑا تھالی بھی مانگتی تو تھالی اتار کر دے دیتا. یہ محبت ہے, اظہار ہے بیوی سے محبت کا. آج دیکھیے کہ عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ کس طرح برا سلوک کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے کھانا بنوایا, اس میں کہا شوربہ زیادہ کرنا. تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شوربہ زیادہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری زوجہ خدیجہ کی سہیلیاں آ رہی ہیں, ان کے لیے کھانا تیار کروا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بی بی خدیجہ کے تذکرے سنتی. ایک مرتبہ تو عورت ہے نا, فطرت عورت کی شکوہ کر بیٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی عورت آپ کو ملی ہے اور کوئی عورت اور ہم 11 دیگر ان کے علاوہ 10 زوجائیں آپ کے نکاح میں ہیں اور وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی اور ہم 9 عمر بھی آپ کی بارگاہ میں نکاح میں ہیں اور پھر بھی آپ ان کے تذکرے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا پتا وہ میرے دکھوں کا سہارا تھی, اس نے 25 سال میرے ساتھ مشکل کے وقت میں گزارے اور جب میں پتھر کھا کر آتا تھا تو وہ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ نہیں ہوتی تھی اور ایک ہاتھ سے مجھے کھجور کھلاتی تھی اور بستر پر لٹا کر آرام کراتی تھی اور کہتی تھی اے محمد پریشان نہ ہونا, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. وہ اس طرح دلاسے دیا کرتی تھی, اس طرح سکون پہنچایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو فرمایا کہ مرنے والے کا سوگ 3 دن اور عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرنے کی اجازت ہے, لیکن میرے آقا نے بیوی سے محبت کا اظہار کیسے فرمایا. جس سال زوجہ کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا, غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دے دیا. اور آج آپ دیکھیے کہ معاشرہ فاطمہ اور خدیجہ کی سیرت سے محروم ہے اور ان کی سیرت سے یکسر غافل ہو گیا ہے. خدا ان کی سیرت سے سیکھیے, ان کی سیرت ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے غم کو ساتھ بن کر زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک بار غار حرا میں ہیں, خود کھانا پکا کر حضور کے لیے لا رہی ہیں. حضرت جبریل حاضر ہیں. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ خدیجہ آ رہی ہیں, انہیں میرا بھی سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ نے بھی تمہارے لیے سلام بھیجا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے جبریل نے اور خدا نے سلام بھیجا ہے. کیا جواب دیا؟ فرماتی ہیں ان اللہ هو السلام, اللہ تو ہے ہی سلامتی والا, وہ تو ہے ہی سلامتی والا اور آپ پر بھی سلام ہو اور جبریل پر بھی سلام ہو. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس امت کو سہارا دیا, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امت کی خواتین کو سیرت اور کردار دیا, جنہوں نے اس اسلام کی شان بڑھائی ہے اور ایسی زندگی گزاری ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہو کر حق ادا کر دیا. کاش کہ ان کی سیرت بھی ہماری خواتین اپنائیں اور بحیثیت بیوی کے ان کے روح کو اپنائیں اور ان کی سیرت کو یوں اپنائیں کہ پردے کا بھی لحاظ رکھیں, شوہر کی خوشی کا بھی لحاظ رکھیں, شوہر کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں, اپنے گھر کے افراد کا بھی خیال رکھیں اور دین اسلام کی پابندی بھی کرتے ہوئے زندگی گزاریں, عمل کی زندگی گزاریں. نماز و روزے کی پابندی سچی تھی اور عفت باز تھی, پاک باز تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوڑھی سے مددگار تھی. آخر میں شاید ارشاد خوب کہے ہیں وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے, وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے, خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بیوی, شریک راحت و اندوہ پابند رضا بیوی, دیار جاوت یعنی کی طرف راضی ہوئی وہ بھی گئی دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی, مادر اولی اہل ایمان کی ہے یہ اس کی بزرگی اور پاکیزگی, برگزیدہ ہے رب کی محمد کی بھی, اس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت میں لاکھوں سلام. اس کا جبریل ملکوت رکھے ادب ہری گھر اسے بخش رکھ, کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شفق, منزل من قصد لا نصب لا سفق کی زینت میں لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت و کردار کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے بالخصوص ہماری خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے